Good morning, dear students. Let's resume our class. We are all of you know that we are in the chapter enemy. In the previous class, we saw our doctor Sadao. He operated the patient, took out the bullet from it. The servants in the home, that is Yumi and the gardener, they were not happy of the action of Sadao and Hannah. Now let's see what happens. Okay. That young master is so proud of his skill. तो हमारा सर्वेंट्स बोल रहे कि ये जो सदाव है अपने स्किल पे, अपना डॉक्टर का जो काबिलियत है उस पर इतना गर्व है कि वो किसी को भी ऑपरेट कर सकते हैं. To save life, that he saves any life, किसी का भी लाइफ वो बचाएगा, इतना अपने स्किल पे उनको गर्व है. The cook said contemptuously, in एक dislike के साथ, contemptuously मतलब थोड़ा नफरत के साथ, dislike के साथ, the gardener said. She, gardener means sorry, the cook, so she is a female. She split a fowl's neck, एक bird का neck काटा उन्हें, split a fowl's neck skillfully, तो cooking में use करने के लिए maybe a hen or a duck or anything like that. She cut the neck skillfully and held the fluttering bird, और इस bird जो neck काटे के वजह से this fluttering, उसका जो खून बह रहा था वो किसी पेड़ के पौधे के नीचे रखा, because it's a good fertilizer, and let its blood flow into the root of a wisteria. Wisteria is a creeper type plant with white flowers. Wisteria white. Blood is the best of fertilizer. तो बर्ड का जो खून है वो अच्छा एक फर्टिलाइजर है. एंड the old gardener would not let her waste a drop of it. और गार्डनर कभी भी उस घर पे किसी बर्ड का कोई मारते हैं तो उसका ब्लड वेस्ट करने नहीं देता, हमेशा उसका ब्लड किसी पौधे के नीचे डालता ताकि इससे गुड फर्टिलाइजर. It is the children of whom we must think. तो they were saying that ये सदाव इस तरह की हरकत करने के कारण अपने पूरा परिवार को खतरे में डाल रहा है. कौन सा हरकत? एक एनिमी को शेल्टर देके. तो he should think about his children. It is the children of whom we must think. Yumi said sadly. बहुत sadly Yumi बोला, देखो बच्चे का हालत देखना, कल अगर उनके पापा को पकड़ा गया ट्रेटर के रूप में तो सब लोग इसको मतलब अपने बच्चे खतरे में चला जाएगा. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? अगर उसका पापा को एक ट्रेटर के रूप में, एक देशद्रोही के रूप में पकड़ा जाएगा तो उनका फेट क्या होगा, उनके बच्चों का हालत क्या होगा? That was Yumi more worried about. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah. तो हना को देखकर भी वो अपना मुंह बंद नहीं किया, ये सोच के कि उनका वर्ड्स हना सुने. As she stood arranging the days flower in the veranda nearby, उन्होंने देखा कि हना nearby veranda के पास ही खड़ा था और वो सुन रहे हैं, बट फिर भी वो लोग जानबूझ के ताकि ये हना सुने इस तरह बोला उन्होंने, ताकि let her realize कि उनका वो लोग इसका oppose कर रहे हैं. And she knew they spoke on purpose. उनको मालूम था कि जानबूझ के बात किया लोग, that she might hear. That they were right. She knew to in most of her being. और वो ये भी नहीं, हना को अच्छी तरह मालूम है कि जो सर्वेंट्स बोले वो पूरी तरह सच है. But there was another part of her which she herself could not understand. But इस कहानी का दूसरा एक साइड है जो खुद हना समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि देखो she and Sadao is doing all these things only because thinking about humanity. It was not genuine liking of the prisoner. ये जो भी हम कर रहे हैं इस prisoner को इतना सा भी लाइक करके नहीं कर रहे. She had come to think of him as a prisoner. She did not like him even yesterday. कल भी जब उनको लास्ट मीट किया था इतना सा भी लाइकिंग उनके प्रति नहीं था. When he had said in his impulsive way, in a emotional way में, कल जब हना सोल्जर से मिला था तो सोल्जर ने उनको अपना नाम बताया था, उस समय भी हना को उनके प्रति इतना सा भी लाइकिंग, थोड़ा सा भी लाइकिंग नहीं आया.
Anyway, let me tell you that my name is Tom. So the first time इस soldier का नाम बता रहा है. What is the name? Yeah, it is Tom. तो soldier ने बोला मेरा नाम Tom है. She had only bored a little distant bow. तो आपको मालूम है जहाँ तक जापानीज लोग कुछ ऐसे कुछ है तो दे bow. ये जब Tom told that my name is Tom, so she just bowed like this and showed. She did not speak anything. She saw hurt in his eyes. So अभी भी उस आदमी के आंखों में अच्छी तरह से दर्द महसूस कर रहा था. But she did not wish to assuage it. But हना खुद वो महसूस किया ऐसे दिखाया नहीं कि उनका किसी तरह का सिंपैथी नहीं दिखाया सोल्जर के प्रति. Indeed, he was a great trouble in this house. Indeed, देखो कितना भी वो hurt हो, कितना भी कुछ भी हो, हना के माइंड में लास्ट ये फीलिंग आ रही कि whatever we you are our enemy. वो सोच उनके मन में हमेशा है. And as for Sadao, every day he examined the wound carefully. हर दिन वो आकर पेशेंट का एग्जामिन करते हैं, ध्यान से उनका चोट देखते हैं. The last stitches had been pulled out this morning. तो जो स्टिच उन्होंने लगाया था, धागा लगाया था, स्टिचिंग किया था, उसको उस दिन सुबह हटा दिया. And the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. तो 2 हफ्ते के टाइम पे या 15 दिन में वो पूरी तरह से सही हो सकते हैं. Sarao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. तो सराव ने क्या किया, अगर वो बीच में बिना कोई इंफॉर्मेशन के एकदम से पकड़ा जाएगा तो उन्होंने क्या किया, ये जो मैटर जब से वो सोल्जर नहीं ये सोल्जर आप भाई जब से वो स्ट्रेंजर उनके समुद्र तट पर आया घर के सामने तब से अभी तक जो कुछ हुआ सब उन्होंने पेपर पे टाइप करके रखा ताकि अगर वो एकदम से अरेस्ट किया जाएगा तो शायद हो सकती कि पुलिस कुछ बिलीव न करे या पूछे ना तो उनको सारा मैटर्स बताने के उन्होंने पेपर में सब कुछ टाइप करके रखा. तो क्या लिखा हुआ है, ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी. तो अभी इससे पता चल रहा है कि 21 फरवरी को आया था वो उनके घर के सामने. An escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. मेरे घर के सामने समुद्र से वॉश ऑफ करके एक आदमी आया था 21 फरवरी को. So far it typed. तो अभी the very minute इस मोमेंट तक जो कुछ हुआ सब कुछ उन्होंने टाइप किया. And then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. और उन्होंने अपना शेल्फ खोला, ड्रॉयर खोला, अपना टेबल का ड्रॉयर खोल के उसमें रख दिया. Okay. Then what happened on the 7th day after that? 2 important things happened. 2 important thing हुआ. क्या क्या है देखते हैं. On the 7th day 2 important things happened. First ये है कि पूरा servants घर छोड़ के चला गया. Okay, let's see the first thing. In the morning the servants left together. सारे servants एक साथ वो घर छोड़ के चला गया. Their belongings tied in large square cotton kerchief. एक बड़ा सा कपड़ा लेकर उसमें उनका जितना भी चीजें बांध के सारा सर्वेंट्स घर छोड़ के चला गया. When Hannah got up in the morning, जब सुबह हना रात के नींद के बाद सुबह उठी तो nothing was done. घर का कोई काम नहीं हुआ था. The house not cleaned and the food not prepared and she knew what it meant. खाना नहीं बनाया गया, घर का कोई साफ सफाई नहीं हुआ. ये देखकर हना को पता लग गया क्या हुआ. She was dismayed, थोड़ा worried and even terrified, डर गए थे वो ये सब देख के. But her pride, जो pride है मास्टर का जो pride है इसके वजह से उन्होंने ये सब अपना फीलिंग्स दिखाया नहीं. And mistress would not allow her to show it. She was worried, she was frightened, but उन सबका उन लोगों के मिस्ट्रेस होने के वजह से she did not show all this to the servants. Instead she inclined her, बस अपना सिर थोड़ा साइड करके बेंड करके head gracefully एक रेस्पेक्ट के साथ सिर साइड किया, उनको जाने के लिए बोला. When they appeared before her in the kitchen, सब लोग जब उनसे बोलने के लिए आया था थोड़ा सा अपना रेस्पेक्टफुली अपना सिर हिला के झुका कर उनको अलविदा किया. She paid them off and thanked them for all that they had done for her. तो उन्होंने जितना दिन का उस दिन तक का जितना पेमेंट है वो पूरा उनको दे दिया और उनको थैंक्स बोल के बाय बाय किया.
They were crying, but she did not cry. All servants they were crying because they were leaving the house. उसमें जो gardener और जो cook है, the cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. तो पापा के साथ जब सदाव छोटे बच्चे थे तब से उस घर में काम करने वाले थे वो कुक एंड गार्डनर। तो इतने सालों काम करने के बाद वो घर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए they were very emotional and they were crying. So what happened? And Yumi cried because of the children. तो यूमी आपको मालूम है, ऑलरेडी मैंने बताया बच्चों की देखभाल करना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं इसलिए she was crying. She was so grieving, इतना दुख भरी थी वो कि after she had gone she ran back to Hana. तो थोड़ी देर जाने के बाद वो वापस चले आए हना के पास. What did she say? If the baby misses me too much, अगर बेबी ज़्यादा मुझे मिस कर रहा है, too much tonight, send for me. अगर मुझे देखे बिना वो रोती है ज़्यादा और मुझे मिस करते तो प्लीज़ मुझे आके बताइए, मुझे बुलाइए. I am going to my own house and you know where it is. आपको मालूम है मैं मेरे घर ही जा रहा है और आपको मेरे घर मालूम है. अगर बेबी ज़्यादा रोते हैं और मुझे मिस करते तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आया, मुझे बुलाइए. थैंक यू हना सेड स्माइलिंग. उन्होंने हना ने कुछ बोला नहीं, जस्ट ओनली थैंक यू बोला, बट मन ही मन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगर बच्चे कितना भी रोए उनको बुलाने वाला नहीं है. बट शी टोल्ड herself she would not send for Yumi however the baby cried. तो कितना भी बच्चे रोए मैं इनको बुलाने वाला नहीं है, ऐसे हना ने मन ही मन सोचा था. She made the breakfast. तो हना उस दिन ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा हना को. And Sadao helped with the children. और Sadao उस समय बच्चों का देखभाल किया. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. तो सर्वेंट जाने के बारे में, किसी की चीज के बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया. बात यह है कि वो चला गया, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हुआ उसके बारे में. But after Hana had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. तो वो prisoner को सुबह का नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट देने के बाद वो वापस आ गया Sadao के पास. Why is it we cannot see clearly? देखो हमें चीजें इतना क्लियरली क्यों दिख नहीं पा रहा, क्या करना चाहिए हमें क्लियरली क्यों कर नहीं पा रहा. What we ought to do, हम जो करना है वो हमें क्लियरली दिख क्यों नहीं पड़ रहा. She asked them, even the servants see more clearly than we do. देखो हमारा सर्वेंट्स जो अनपढ़ है हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह चीजों को देख रहे हैं, पर हम क्यों नहीं देख पा रहे. Why are we different from other Japanese? हम दूसरे जापानीज से अलग क्यों हैं, वो लोग जिस तरह सोच रहे हैं हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसे पूछा हना to her husband Sadao. Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly. Sadao कुछ बोला नहीं, वो थोड़ी देर बाद सोल्जर के पास गया, स्ट्रेंजर के पास चला गया, ब्रिस्कली मतलब रफली बोला, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट. तो थोड़ा सा भी प्यार से नहीं, थोड़ा रफली बोला, आज तुम अपने पैरों में खड़े हो सकते हो, बहुत दिनों का ऑपरेशन के बाद आज तुम खड़े हो सकते हो. आई वांट टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम. तो एक साथ 5 मिनट खड़े हो जाओ, फिर रेस्ट करो, फिर 5 मिनट खड़े, इस तरह 5 मिनट कंटिन्यूसली तुम खड़े हो सकते हो. टुमारो यू विल ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग. तो आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, इस तरह टाइम बढ़ाते बढ़ाते जाना, इस तरह तुम खड़े हो सकते हो. It would be well that you get back to your strength as quickly as possible. और हो सके तो जल्दी जल्दी तुम्हारा पूरा एनर्जी में, तुम्हारा पूरा स्ट्रेंथ में हो जाओ तुम. ये सुनकर हमारा सोल्जर थोड़ा उदास हो गया, उनको डर लग गया, जल्दी से जल्दी सही होके क्या करना है. He saw the flicker of terror. तो एक आंखों में अजीब तरह का मतलब एक डर का एक झलक देखा. On the young face that was still very pale. चेहरा अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ था, थोड़ा ब्लड की कमी था, चेहरे पे येलोइश कलर था. उस चेहरे पे अजीब तरह का डर आने लग गया जब सदाओ ने बोला. ओके, द बॉय murmured. Evidently he was determined to say more. तो इससे लग रहा था कि वो कुछ और बोलने वाला था, उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है. I feel out to thank you doctor for having saved my life. और मैं आपको
थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि तुम आपने मुझे मेरा लाइफ सेव किया। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ द